Yes, and Hello, hello, hello. Please put your speakers mute. आपका स्पीकर म्यूट में रखो, नहीं तो जो बोलता है वो इंटरफियरेंस होएगा. Greetings to you all. अभिवादन है सबको हमारा. Abhishek, can you please translate? yeah, I will translate. Okay. Greetings to you all to this meeting, EduPlus meeting this evening. आप सबको शाम का नमस्कार. आप सभी को अभिवादन इस शाम की सभा के लिए. It's a program that we depend on God and talk out differently from the meetings that we have conducted so far. और ये जो मीटिंग है, हमने अभी तक जो हम कार्य को करते हुए आए हैं उसका एक प्रतिफल के रूप में हम देखते हैं. I'll go directly into the topic before I inaugurate it. I want to bring your attention to the value of education. मैं आज शुरू करने से पहले मैं आज तो आपको पढ़ाई के कुछ महत्व के बारे में मैं आपको बहुमूल्यता के बारे में बात करना चाहूंगा. Education is the fundamental methodology or program to develop a person holistically. और जो पढ़ाई है वो एक मूल कारण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को बदलावट में लेकर आता है. Now, when I say that, you look at a person, the person looks good, 6 feet high, looks handsome and everything. But if he doesn't speak, all his look will be meaningless, isn't it? अगर आप एक व्यक्ति को देखें, अगर वो उसकी कद 6 फीट कद है, अगर वो एक अच्छा दिखने वाला है लेकिन वो एक अच्छे रूप में नहीं बात करता, तो उसका उस रूप का जो उसके बाहरी का रूप है उसका क्या महत्व है. Okay, go forward. Look at the person. He looks handsome, looks neat and everything. He speaks, but he doesn't speak sensitively. Then also his personality doesn't convey anything. अगर देखें एक व्यक्ति जो बहुत एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है और एक बहुत अच्छी बातों को करता बहुत, लेकिन बात जब वो करे वो बहुत उड़ता के साथ बात करे, तो वो भी एक अच्छा एक उदाहरण नहीं. Now there are certain people, you look at them, they're beautiful, they talk very artistically and very matured in certain topics, and when it comes to something else, they are very weak or they can't continue a conversation. अगर आप कई लोगों को देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत अच्छा दिखते हैं और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं कि बड़ी परिपक्वता के साथ वो कुछ शीर्षकों पर बात करते हैं, लेकिन किसी किसी बातों पर वो भी ऐसे कुटिलता के साथ बात करते हैं. Look at me, I speak in English to a good extent, but when it comes to Hindi, I'm very much limited. अगर आप मेरे को देखें तो मैं बहुत अच्छे एक अंग्रेजी को बोलता हूँ, लेकिन जब मैं हिंदी में आता हूँ तो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ हिंदी में. I am a weak person when it comes to Hindi. मैं एक बहुत कमजोर हूँ. अगर हिंदी की ओर देखें तो मैं बहुत कमजोर हूँ. For that matter, I am weak in so many things. We are all weak in so many things. और उसके अनुसार हम बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में हम कमजोर हैं. The most fundamental thing to start a change in the kamzori, in the shortness of our personality is language. The basic thing to start with the progress of the personality is language. और हमारे भाषा
हमारे जो मनुष्यत्व को, हमारी बाहरी रूप को एक अच्छे रूप में प्रकट करने के लिए सबसे मूल जो बात जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो है भाषा। Because without language, you don't have a sphere of mind. क्योंकि बिना भाषा के आपको सोचने की एक मन शक्ति के रूप में हम नहीं देख पाते हैं। So the thought process is actually controlled or is initiated in this progress based on the language. और इसके द्वारा जो हमारे एक जो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो किस प्रकार से कार्य करती है, वो है जब हम एक भाषा के द्वारा हम उसको कार्यशील में लाते हैं। In the world, you have got tons of language. You have got millions of languages, I believe. और संसार में आप देखें तो कई सैकड़ों भाषाएं हैं हम देखते हैं संसार में। When I say millions, actually, it is not million in number, but million in mind. अगर मैं कहूँ करोड़ों या सैकड़ों भाषाएं हैं, वो गिनती में नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर अगर हम देखें तो वो है। English is one language, but my English is different from your English. और इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है वो एक भाषा है, लेकिन मेरी अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी से अलग होगी। Hindi is one language, but my Hindi is different from your Hindi. हिंदी एक भाषा है, लेकिन मेरी हिंदी और आपकी हिंदी अलग होगी। So, in the perspective of a language itself, there are so many versions. और एक भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो कई कई वर्जन्स को हम देखते हैं। Now, for each person, there is a version of language that he formulates in his progress, in his personality. अगर हम देखें हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन के आगे बढ़ोतरी में हम देखते हैं अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग भाषाओं के वर्जन्स को हम देखते हैं। So what I want to tell you tonight, this evening, is that if we cannot handle language, we do not have a mature personality. We cannot have a mature personality. आज मैं आप शाम के समय आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आपका एक भाषा नहीं है तो आप एक अपने आप की अपनी पर्सनालिटी को आप नहीं देख पाते हैं। All of us should at least master in one language. More than one language is really good. At least we must master in one language. ये होना चाहिए कि हम में से हर एक एक जो है एक भाषा में, एक जो भाषा है उसके अंदर पूर्ण रूप से अच्छी पकड़ बनाए रखनी होनी चाहिए। At least if you can master in one language, you will be really privileged to go to other languages with its thoughts. अगर आप एक ही भाषा में एक अच्छे रूप में अच्छी पकड़ बनाए रखे हैं तो उसके स्थान पर आप दूसरी भाषाओं में भी अच्छे रूप से उसमें आप जा सकते हैं। When we come to think of language, for medicine there is a language, for engineering there is a language, for art there is a language, for all of that, for different culture there are languages. You cannot understand a culture or a people without understanding their language. अगर आप देखिए मेडिकल में जाए उसमें एक भाषा है, अगर आप इंजीनियरिंग में जाए उसमें एक भाषा है, आप अलग अलग स्तर पे जाएंगे तो हर एक स्तर का एक अलग अलग भाषा है, तो हर एक को समझने के लिए हमें उसकी भाषाओं को समझना जरूरी है। It's very important, very, very important to master a language. और ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी एक भाषा में आपको अच्छे रूप में दृढ़ होना। Now, when it comes to getting education in English language, I want to highlight a couple of things. अगर हम देखें, अगर हम आए अंग्रेजी भाषा में अपने शिक्षा को प्राप्त करना, तो मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ।
English language is simple and so wide in glossary and thoughts. और अगर अंग्रेजी भाषा में अगर हम आए तो ये बहुत एक बड़े स्तर पर है और बहुत सारे विचारों को लेकर आता है। It's one of the most widely used language in the world. और ये जो एक भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वो संसार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। Great majority of the countries, if you go, if you know English, you'll be able to manage. अगर पूरे संसार में आप कई जगहों पर भी जाएं, वहां पर अधिकतर लोग आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में बात करते हैं। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप वहां पर अच्छे से रह सकते हैं। And so many branches of knowledge is explained easily or more efficiently in English language. और कई सारी बातें हैं जो बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े अच्छे रूप से अंग्रेजी भाषाओं में उसका व्याख्या किया गया है। Even today, after a lot of progress and advancement in culture and civilization and education, there are so many subjects that you cannot learn in any other language than English. और इतने सारे बढ़ोतरी होने के बाद भी, इतने सारे उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे विषय हैं जो आप अंग्रेजी भाषा में ही उसको समझ सकते हैं, उसका ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। So we'll be more advanced, and the potential for the development is really great if we master in the English language. अगर हमारे हमारी बढ़ोतरी का जो स्तर है वो अच्छे रूप से होगा, अगर हम अंग्रेजी भाषा में एक जड़ को पकड़ते हैं या उसमें अच्छे बनते हैं। Because you will be able to handle the different branches of knowledge as well as different civilizations easily in English language. क्योंकि आप कई ज्ञानों के कई अलग अलग स्तर को पकड़ पाएंगे और कई 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 बातों को आप समझ पाएंगे अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल से। So this evening, first thing I said that without education, a person cannot be holistically progressed or developed. और आज के शाम के समय पहली चीज जो हमने देखी कि बिना भाषा के कोई भी एक व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप को बढ़ोतरी नहीं कर सकता। I said the language is the tool or the basis to develop a person, in all areas of the personality. और दूसरी चीज भाषा के इस्तेमाल से, भाषा की मदद से एक व्यक्ति जो है अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को वो अच्छे कर सकता है। There are tons and tons of languages in the world, but for us, everyone has got a special language of our own. और इस संसार में सैकड़ों सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन हम में से हर एक को एक भाषा हमारे लिए दिए गया है। In the mixture or then I said, in the mixture or the multitude of languages, English language is an advantageous language. और इन सारे सैकड़ों भाषाओं में अगर मैं आपसे कहूंगा कि अंग्रेजी भाषा है जो हमें एक लाभ को देती है इन सब भाषाओं को सीखने के लिए। Now we come to the reason for this meeting, that our brothers, and I wouldn't say the children, our brothers and sisters all over the Zoom platform, who are not fluent in English or who are not in a position to understand English, can really take advantage of this opportunity. और आज इसके द्वारा इस मीटिंग का मुख्य कारण क्या है वो बताने के चाहूंगा कि केवल बच्चे ही नहीं, लेकिन जो कोई व्यक्ति आज हमारे साथ में है, जो भी जूम के प्लेटफॉर्म के द्वारा हमसे जुड़े हैं, जो अंग्रेजी भाषा में उतने अच्छे नहीं है, अच्छे स्तर पर नहीं है, तो इसके द्वारा वो एक अच्छे रूप में बढ़ने के लिए
अच्छे पकड़ भाषा की अंग्रेजी भाषा को रखने के लिए हम इसके द्वारा हम देखेंगे। This is a wonderful opportunity, and we have got a very talented person with us, Abhishek. In his young age, he is handling English and Hindi and even some other languages very professionally. और इसके द्वारा हम देखेंगे, हमारा एक बहुत अच्छा एक हमारा भाई है हमारे साथ में, अभिषेक, जो इसको सिखाने के लिए हमारी मदद को करेगा। So that is a great opportunity. This time I would like to take this opportunity to remember about our Sunday school teacher who was also an opportunity for us in the last previous days, but she is not there with us now. और इस समय पर मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जो पिछले दिनों में हमारे साथ में थी, जो हमारे संडे स्कूल की टीचर थी, अभी नहीं है वो हमारे साथ में। Elizabeth was a wonderful teacher. She had a proficiency in several languages, but then she got married and she got engaged in different things, and she cannot spend that much of time with us. और एलिजाबेथ जो थी वो बहुत अच्छे एक सिखाने वाली थी, उनकी कई कई भाषाओं में उनको महारत हासिल थी, लेकिन उनकी शादी के बाद वो व्यस्त हो गई अपने जीवन में। I am pretty sure that so many children even now remember and keep Elizabeth teacher in their mind very active. और मैं आशा करता हूँ कि एलिजाबेथ टीचर को अभी तक भी कई बच्चे याद करते होंगे, उनके मन में आता होगा उनके बारे में। That's mainly because of her proficiency in teaching and the way she has interacted with the children. और ये इसलिए कि जिस तरीके से वो पढ़ाती थी और किस तरह से वो बच्चों के साथ मिलती थी। So we are getting another talent, a wonderful talent, Abhishek, our wonderful friend and son, Abhishek, to take care of you all in tuitioning in English. We will start with that basically. We have got potential. We have got different resources in different parts of the country that we can bring to Zoom platform and take advantage in the coming days. और हमें कई सारे ऐसी चीजें हमें मिल चुकी है, मुआयना हो चुका है, जिसके द्वारा हम आने वाले दिनों में हम जूम के द्वारा हम बहुत सी बातों को, बहुत सी चीजों को आप सभी के साथ बांटेंगे। So please consider this as an important mission in your life and the important opportunity in your life. Not only the children, but even the elders who are enthusiastic about studying English can really take advantage of this opportunity. और आप इन सब अवसरों को जो आपके सामने दिया गया, इस अवसरों को मूल्यवान समझते हुए उसको देखें, उसको खाली बच्चे ही नहीं, जो भी बड़े जो भी चाहते हैं कि हम इस भाषा को हम सीखें, तो आप इस मूल्य को जाने, इसके मूल्य को जाने, इस महत्वता को जानकर इस पे भागीदारी हो। With the assurance, with your assurance that you will take it seriously and you will take advantage of the situation, will take advantage of this opportunity to learn English professionally. I am really happy and I am really thrilled to declare this EduPlus program program inaugurated this evening. और मैं आशा के साथ कि आप लोग इसको अवसर को आप मूल्यवान समझते हुए इसके भागीदारी होंगे और इसको भाषा को आप अच्छे से सीख पाएंगे। इसके साथ इस एजू प्लस हमारी जो सभा है, सर्विस है, इसको हम आज से शुरू करना चाहते हैं। I pray that the good Lord take care of the health and the faculties of our wonderful teacher Abhishek and all the children who are going to participate and all those who are supporting this program. I'm praying for it, and especially our John Joseph sir, who has been a think tank behind all these suggestions and programs. और मैं इस समय पर सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस मीटिंग के द्वारा जुड़ेंगे, सारे बच्चे और सब जो लोग इसके द्वारा सीखेंगे, और खास तौर पे जॉन जोसेफ सर के लिए
कि जो इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं और इस मीटिंग को मुकम्मल होने के लिए पीछे से लगे हुए हैं। Let me tell you, this is a golden opportunity, and the education is coming to your doorstep. Remember, through Zoom platform, it is coming to your doorstep. Whatever you are engaged in, still, along with that, you can learn English, and you can really benefit from it if you really pursue the coming classes with Abhishek. हाँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये एक सुनहरा अवसर है कि जो आपके पास आ रहा है, एक जूम के द्वारा आपके घरों में आ रहा है, जो जिसके द्वारा आप सीखने पा रहे हैं, कुछ शिक्षा को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। Along with our sweet children, I appeal to the parents also to take some time with the children in the Zoom classes so that you also can get benefited. और बच्चों के साथ साथ ही मैं उनके परिवार को भी मैं कहना चाहूंगा कि इसके द्वारा आप अपने समय को निकालें और बच्चों के साथ आप भी समय निकाल कर इस मीटिंग में जुड़ें और आशीषित हो और कुछ सीखें, कुछ प्राप्त करें। The sphere, the vihais, the sphere that is opened by the door of education or language is something unimaginable and something beyond our measure. और एक द्वार जो खोला जाता है एक शिक्षा के द्वारा, वो एक ऐसा है जो हम जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। And I invite you to that wonderful feast, to that wonderful feast of knowledge, and get benefited through these classes. May God bless you all and keep you all safe and progress in the program. और मैं आप सबको निमंत्रित करना चाहता हूँ इस सभा में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपको कुछ सीखने के लिए परमेश्वर आप सभी को मदद करे। Thank you all, and let us keep praying for each other. God bless. सबको धन्यवाद। आइए हम एक दूसरों के लिए हमेशा हम प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको आशीष। प्रेज द लॉर्ड। Praise the अभी Lord. हमारा सुन सकता है क्या? Yes, yes. अच्छा, अभी हमारा वीरेंद्र जी उनका आइडिया बोलेंगे 2 मिनट 3 मिनट में। वीरेंद्र चौधरी। क्या बोलना है सर? आपका आइडिया और आपका इसी में कैसे मैं पहले बता थे, आपका आइडिया बता दीजिए इसी के बारे में। जी जी जी, सबसे पहले सर जॉन सर, एलेक्स सर को धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बहुत प्रयास करके जो इंग्लिश सीखने का जो प्लेटफॉर्म के द्वारा आए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। एक बहुत अच्छा अवसर है ये उत्तर भारत के लिए, हम लोग का सॉरी दक्षिण भारत के लोगों के लिए, क्योंकि इधर के लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बच्चे के साथ उनका पेरेंट्स भी। तो ये जॉन सर के लगातार प्रयास से, एलेक्स सर के प्रयास से एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो हर एक लोगों को ये चलने के लिए जरूरी है कि हर एक लोग सही समय से और प्रतिदिन जब जब मतलब एक क्लास चलता है चलेगा, तो सही समय से लोग जुड़े। और विशेष बात यह है कि मोबाइल का डेटा उस दिन के लिए बचा करके रखें, नहीं तो इधर सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि जब जूम मीटिंग का टाइम आता है तो देखते हैं कि डेटा ही खत्म हो गया। अगर जो यही चीज को हम लोग इधर गांव देहात में अगर जो क्लास करने जाएंगे तो अच्छा पैसा भी लगेगा और उसके लिए समय भी जाना भी पड़ेगा। लेकिन ये जो एक सुंदर मौका है कि अपने मोबाइल के द्वारा, जूम के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं अपने घर में। तो बहुत अच्छा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा मौका लग रहा है। और विशेषकर हमारे जो मसीह भाई लोग हैं, उनको परिस्थिति भी बहुत क्या आर्थिक स्थिति भी थोड़ा खराब होने के कारण बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है
इस मौका का लाभ उठाएं लोग और सही समय से जुड़ें। इसके लिए एक बार फिर से हम जॉन सर और एलेक्स सर को धन्यवाद करना चाहेंगे, और जो हमारे टीचर लोग से हैं जैसे अभिषेक जी है और भी कई लोग हैं, उन सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे। Thank you, Biren. नेक्स्ट वन कोई भी हमारा प्रिय Balmuch. चंद्रदेव जी, चंद्रदेव जी। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है सर, जो आप लोग का प्लानिंग है अच्छा है, बढ़िया है। और प्लानिंग में और हर एक प्लानिंग में हम लोग कोशिश करते हैं कि साथ में रहे, और ईश्वर करे कि इसी तरह से मौका मिले और हम लोग संगति में बना रहे। और जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है बच्चे लोगों का एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई, बोलने का, सीखने का, ये भी अच्छा चलता रहे। और हम लोग का भी जो बच्चे लोग हैं वो सीख सके और आगे बढ़ सके, तो इसके लिए अच्छा है, मौका है सर। आप आगे चालू कीजिए और बरकरार रखिए। और हर एक लोगों को, जितने टीचर लोग हैं, एलेक्स सर, जॉन सर, और हर एक पास्टर लोगों को जय मसीह बोलता हूँ। और बहुत अच्छा है सर, आगे का जो है हम लोग भी बच्चे लोगों को जुड़ने के लिए और हम लोग भी सीखने के लिए कोशिश करेंगे। जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू। अभी बादल जी, बादल जी। जय मसीह सर। ओके, आप अपना करो। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज इस समय में हम लोग को एक अच्छा सुझाव मिला है, और हम सब बाल बच्चों के लिए भी। और इस तरह से प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी एलेक्स सर और जॉन जोसेफ सर लिए हैं डिसीजन, वो डिसीजन अच्छा है प्रभु के मार्ग के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से अगर होगा तो बच्चों को बहुत पढ़ाई में आसानी होगा। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी बातें जो कहा गया सचमुच परमेश्वर के लिए और प्रभु का राज बढ़ने के लिए और बच्चों को भविष्य के लिए एक अच्छा होगा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। बादल जी है क्या? बादल जी? Hey. जी सर, मैं हूँ। हाँ प्रेज जी, द लॉर्ड, ओके। जय मसीह की सबको। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा शानदार रहा। हमारे बीच में जो परमेश्वर के दास एलेक्स सर और पास्टर जॉन सर हमारे बीच में जो आज बहुत ही अच्छा इस मीटिंग को प्रोग्राम अरेंज किए हैं, जो बच्चों का एक भविष्य को लेकर नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर अधिकतर देखा जाए तो यहाँ इंग्लिश में बच्चे लोग को बहुत कमजोर पाया जाता है। और इंग्लिश में अगर पढ़ाना रहता है, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहता है, क्योंकि गरीब लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह का सिस्टम को तैयार किए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तैयार किए हैं, जिसके वजह से आज बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोग, बच्चे लोग, गरीब लोग जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से एक इंग्लिश सीखने का माध्यम मिल रहा है, जिससे वो क्या है, इंग्लिश सीख कर बहुत बातों को डेवलप कर सकेंगे अपने जीवन में, और आगे प्रभु के सेवकाई के में आगे वो हाथ बढ़ाएंगे इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा आप लोग तैयारी, बहुत अच्छा योजना को बनाए हैं, और हमारे जो बच्चों को विकसित करने के लिए, क्योंकि हमारे समाज, हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए आप तो बहुत बड़ा विजन को रखे हैं। और जरूर परमेश्वर पे इसमें ब्लेस करेंगे, आप प्रभु आशीष करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा। और जितने हम धन्यवाद देंगे कि हमारे बीच में जो अभिषेक सर है, जो एक टीचर के रूप में वो इसको सिखाएंगे, और परमेश्वर उनको वहाँ पर चुना है बच्चों को इस तरह से टीचिंग देने के लिए, लर्निंग इंग्लिश को सिखाने के लिए। तो परमेश्वर उनको, उस भाई को भी आशीष करे। और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं सबको को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, आप इसके पीछे जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी बच्चों को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन में लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में अटेंड करवाने के लिए
तो इसके लिए हम लोग मिलकर सब कुछ दुआ करेंगे, जरूर प्रार्थना करेंगे कि ये जो योजना बनाए आगे भविष्य में चलकर ये बहुत बड़ा विशाल खड़ा हो, बहुत बड़ा से बढ़ने पाए, ताकि और परमेश्वर के राज तेजी से बढ़ने पाए। इतना ही बोल के आप सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। जयमणि जी, जयमणि जी है क्या? Hey. सर जी, मैं बस में यात्रा कर रहे हैं। अच्छा ओके अच्छा। ओके ओके। आपका बच्चे लोग आए हैं क्या मीटिंग में? वो जो ट्यूशन क्लास में? ओके। इन्हीं और कोई है क्या? चंद्रदेव, जयमणि जी, प्रभुदास। और प्रभुदास है क्या? Prabhudas also Prabhudas? was traveling. प्रभुदास है क्या? ना, प्रभुदास नहीं आए लगता है। Okay. और हमारा जैकब जी, आपका कुछ बोलना तो बोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ सर मैं गाड़ी में हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं सकते। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाड़ी बस में? में यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं पटना। चार्ट बुक में डाले हैं। ओके। ജേക്കബ് ജി, आपने थोड़ा कुछ बोल दीजिए। അവിടെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഒരു സമാജത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ। ഓക്കെ, താങ്ക് यू। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। विशेष तौर पर एडू प्लस का नाम पर एक नया जो कार्य हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस दर्शन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जॉन पास्टर और उसका हमारा मार्गदर्शक और हमारा बड़ा सहयोगी और इच्छुक और हमारा सब कुछ है, हमारा ब्रदर अलेक्स मामन सर को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है। शिक्षा का एरिया में द लॉर्ड चर्च इन इंडिया का एक पगले कदम करके मैं समझता हूँ। हम प्रभु का जो कलाम बांटते हैं, प्रभु में हम बढ़ते हैं, तभी हमारा प्यार हमारा कार्यों से प्रकट होना बहुत जरूरी है। यहाँ ऐसी मीटिंग हो रहा है, केवल भजन हमको जरूर चाहिए, साथ साथ कार्य का भी जरूर है। मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। मीटिंग हो रहा है बाबू। ये चर्च का कार्य के प्रति मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसको अगुवाई करने वाला पास्टर लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे ओर से कुछ सजेशंस हैं। मैंने देखा था जैसे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मैंने काफी बार देखा है, जब शुरू में बहुत इंटरेस्ट होता है, काफी लोग हमको इंग्लिश पढ़ना है, करना है, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरेस्ट कम होते हुए मैंने देखा। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो बच्चा जितना ये बात समझेगा नहीं, इसलिए मेरा प्रिय पास्टर लोगों से, खासतौर पर जो हमारा नॉर्थ इंडिया से जो पास्टर लोगों से मेरा जो विनती है, आप लोग इसको लीड करना। जरूर हमारा अभिषेक जी पढ़ाएगा, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमको दे देगा, लेकिन उसको सदुपयोग करना हम लोगों का काम। इसके लिए मैं बच्चों से बढ़कर मैं पास्टर लोगों को मैं विनती करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसका जो इच्छा प्रकट किया है उसको क्लास का अंतिम समय तक उसको जारी रखना बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी हमको इंग्लिश सीख सकते। इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो। मैंने जब नॉर्थ इंडिया में आया, मेरे को हिंदी इतना नहीं जानता था, अभी भी इतना नहीं जानता, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी चीज है, हम सुनने से ज्यादा सीखते हैं। मैंने 9 महीने लग गया नॉर्थ इंडिया में आने के बाद थोड़ा बहुत हिंदी बोलने के लिए, 9 महीने लगा। तब तो मेरे कुछ नहीं समझ आया था। मैं बोलने का मतलब है, ये लैंग्वेज है सीखने के लिए बहुत इजी है। कोई भी, मैंने क्लास में बताता हूँ, लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है, क्योंकि हम लिसनिंग से हमने सीखते हैं। वो कोई लिखना पढ़ना वो सेकंड थिंग है, क्योंकि कोई एक छोटा बच्चा भी सबसे पहले बोलना सीखता है,
बाद में लिखना और रीडिंग करना बाद में सीखता है, लेकिन पहले बोलना सीखते हैं एक बच्चा। इस तरह से स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इजी मैटर है। अब इसलिए मैं आपको पास्ट लोगों से ही बताना चाहता हूँ, ये रुचि को अंत तक आपको कायम रखना, बीच में इसको खराब नहीं करना चाहिए। अभी दूसरा मेरा सजेशन है, जो क्लास लेने वाला अभिषेक सर से मेरा जो सजेशन है, जो टाइमिंग है बच्चे फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के हिसाब से आपको टाइम फ्रेम करना है। क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में जैसे 7 बजे से 8 बजे तक शाम को खाना खाने के रीति रिवाज हैं, तो हम 8 बजे के बाद सब लोग सोने का एक मौका है, क्योंकि हम केरला के जैसे ज्यादा इंडिया जैसे ज्यादा समय जागते नहीं। इसलिए मैं विनती करता हूँ चाइल्ड फ्रेंडली टाइम होना चाहिए। भी स्कूल स्टार्ट भी होने वाला है, तो वो भी अपना अभिषेक जी ध्यान रखेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और चाइल्ड फ्रेंडली टाइम को सेट करना, साथ साथ हमारा पास्टर जी लोग कुछ कामों में व्यस्त होगा, इवनिंग में होगा, उनका भी समय है, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और मेरा एक तीसरा सजेशन है, जैसे छुट्टी का समय होता है स्कूल का, जो हॉलीडेज है, जैसे सैटरडे होगा, संडे होगा, अन्य हॉलीडेज में आप ज्यादा समय लगा लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा एक तीसरा सजेशन है, ताकि बच्चे को ये पूरा समय हमको दे सकता हूँ। कोई स्कूल में जाने वाले बच्चों को उनको होमवर्क करना होगा, अन्य कार्यों में व्यस्त होगा, इसलिए हॉलीडेज में और लॉन्ग टाइम लेंदी वेकेशन में भी ये सब ज्यादा समय आप दे दोगे तो बेहतरीन होगा। और मेरा एक और सजेशन है, जो इसके लिए एक सिलेबस, जैसे एक आउटलाइन सिलेबस तैयार करना बहुत जरूरत है। तो मैं विश्वास करता हूँ अभिषेक सर इसका और काम कर रहे होगा। सिलेबस एक टाइम फ्रेम के अंदर एक आउटलाइन तैयार कर रहेगा, तो ये हमारा ये लक्ष्य को जल्दी पूरे करने में हो सकता है। अभी मेरा एक फिफ्थ एक सजेशन है, जैसे हम इंग्लिश एटलीस्ट न्यू टेस्टामेंट बाइबल इंग्लिश में आप प्रोवाइड करें, और हिंदी बाइबल और इंग्लिश बाइबल का जो रीडिंग एक तरह से हम लगा तो उसको प्रोत्साहन करेगा, तो मेरा विश्वास है लैंग्वेज में बहुत पकड़ मिले। तो रीडिंग इज वन ऑफ द की, हमको लैंग्वेज बढ़ाने के लिए सबसे मेन की है रीडिंग। सो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम बाइबल इटसेल्फ। इसलिए मेरा एक सजेशन है, हम न्यू टेस्टमेंट इंग्लिश न्यू टेस्टमेंट बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में भी हम उपयोग करना शुरू करो। पास्ट लोग खास तौर पर इंग्लिश बाइबल का भी यूज करो, ताकि लैंग्वेज हम सीखें। ये हम बड़ा एक आशीष का कारण बनेगा, मेरा विश्वास है। और मैं भी ये भी विश्वास करता हूँ, लॉर्ड्स चर्च का शिक्षा का एरिया में ये पगले कदम आप समझना चाहिए। अगर हम, मेरा विश्वास है, अगर प्रभु कार्य करेगा तो हमको आने वाले दिनों में स्कूल तक वहां जगह हम इस तरह का जरूरतमंद लोगों के बीच में स्कूल तक चलाने का प्रभु हमको मदद करेगा। हम वो विश्वास हम करना है, हम वो विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, उस विश्वास के साथ हम प्रभु का कार्यों में लगन से आगे बढ़ेगा, तभी प्रभु हमको ये तमाम आशीष दे देगा। ये नहीं है केवल हम कुछ बात के लिए प्रभु के पीछे जाने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं। ये हम लगातार प्रभु का सेवा में, प्यार में और मेहनत में हम अपने आगे बढ़ेगा, तो हमारा तमाम स्वप्न, चाहे किसी बात हो, चाहे हमारे जीवन का हो, चाहे आत्मीय बात हो, कुछ ही बात को पूरा जरूर होगा, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए इच्छा को जारी रखो। हम पहले वाला उस बात को नहीं, एक दिन का, 2 दिन की, अगर 2 महीने की बात नहीं है, कम से कम 10 मंथ तो हमारे बच्चे के लेवल के अनुसार 10 मंथ मिनिमम चाहिए हमको लैंग्वेज थोड़ा पिकअप करने के लिए। इसलिए ये मेरा सजेशन है। ये कार्य बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। उसके पीछे कार्य करने वाला हमारे पास्टर जी, जॉन पास्टर जी और हमारे प्रिय पास्टर जी, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका अगुवाई, आपका गाइडेंस और भी जारी रहे, ये तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीष बने, ये मेरा इच्छा है, मेरा प्रार्थना है। प्रभु हम सबको आशीष। Okay, धन्यवाद। Thank you, dear. okay, now सर एलेक्स विल, हमारे एलेक्स सर जी, उन्होंने अभी एक छोटी सी मैसेज भी देकर प्रार्थना कर कर खत्म करेंगे। प्लीज सर। अभिषेक जी पोयो।
Segundo. വണ്ടിയിലാണോ മോനെ? വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണോ? ആംഗ്ല വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല 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 ശരി. Praise the Lord and greetings to you all once again. जय मसीह की और फिर से परमेश्वर के नाम से सबका अभिवादन करता हूँ। I'll give a small thought which is very familiar to every one of you. मैं एक छोटे से विचार को आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ जो आपके लिए सबके लिए जान पहचान वाला है। The limitation of human being is overcome only through education. और एक व्यक्ति की जो रुकावटें हैं वो सिर्फ आप उस पर जय तभी पा सकते हैं जब आप एक शिक्षा को अगर आप प्राप्त करते हैं। If you take any creature in the world, you can understand that there is no need of much education. Of course, there is a pattern. There is no need of any great education to bring them to operation. और अगर आप इस संसार के जीवों को देखें तो उनको किसी प्रकार की कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है इस तरीके से एक जीवन को व्यतीत करने के लिए या जीने के लिए। The area of their business and the area of their activity is limited. और उनके जीवन करने के जो स्तर है वो अलग अलग हैं। So whatever they want to do in their life is basically learned or basically picked up on the way of progression of their life. और जो कुछ चीज है उनको सीखना है या उनके जीवन में उनको बढ़ोतरी के साथ करना है वो उनके जीवन के शैली के द्वारा जिनके आगे जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं उसके द्वारा हम देखते हैं होते हुए। Any animal's offspring will pick up the basic requirements of life easily through practice. और कोई भी व्यक्ति अपने जीवनों में किसी स्तर को प्राप्त कर सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में कार्य करते हुए उसकी परीक्षण को करते हुए। When we consider or compare human being with all the creatures in the world, human beings are the ones who need more education, more help to understand this world. अगर आप देखें अगर अपने आप को एक मनुष्य जाति को अगर हम देखें तो मनुष्य जाति उन सारे जीवों से सबसे ज्यादा जरूरत है उसको एक शिक्षा की। When a cow gives birth to a calf, within no time they will stand up, they will start walking and they will start running. एक गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो आवाज रुक रहा है। Abhishek? He's traveling maybe. He's traveling here. No, just now actually it was network changing. I reached home, so Wi-Fi was changing. So now, yeah, now it's good. Okay, great. What I said was that if you look at simple example, if you look at a cow gives birth to a calf, and it doesn't take much time for the calf to pick up those important steps of life. Within no time, it will pick it up. और जब एक गाय जो अपने बछड़े को जन्म देती है तो वो उतना समय नहीं लेती, थोड़े क्षण में ही हम देखते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और वो चलने फिरने लगते हैं। Few minutes they will get up, few minutes they will run around, few minutes they will go and feed from the breast of the nipples of its mother, and then few minutes it will start mewing also. और अगर देखें कुछ क्षण में वो खड़े हो जाते हैं, कुछ क्षण में वो चलने लगते हैं, कुछ क्षण में वो
आपका अलग अलग कार्य को देखने लगते हैं, और कुछ क्षण में वो उनके उनका जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो भी निकालने लग जाते हैं। Everything they learn in a day, and just like that. और हर एक चीज, हर एक कार्य वो एक दिन में ऐसे ही सीख लेते हैं। If you similarly look into the creation and look around in this world, so many things are more easily coming to the creatures, whereas for human being it is a bit different. अगर बहुत सी चीजें हैं जो इस सृष्टि में हम देखते हैं, जो एक अलग जो जीव जंतु जो बनाए जाते हैं उनके लिए एक चीज होते हुए आ रही है, और मनुष्य जाति के लिए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन कठिन रूप में हम देखते हैं, उसको पाते हैं। You know, tortoise, when you might have seen in the documentaries, tortoise when they go and breed and lay eggs on the seashore, when the offspring come, you know, they all will travel towards the sea. I don't know where they get that information from. अगर आप देखें कछुए को देखें, तो कछुए को जब अपने अंडे देने होते हैं, तो उनको पता नहीं किस तरीके से, किस कार्य से उनको पता लगता है कि वो नदी के उस किनारे पर पहुंचते हैं, और किनारे तो अंडे को देखते हैं, तो किस तरीके से उनको पता लगता है कि वो वहां पर किनारा है। It's so amazing that you can see in the documentaries, one night there'll be tons and tons of offspring of tortoise, small little tortoise, walking in one direction towards the water. They won't go in the other direction. अगर आप देखें, अगर आप कुछ जो डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं उसमें देखेंगे, तो कछुए जब अंडे में से निकल वो जो बच्चे हैं वो कहीं और नहीं जाते हुए, सारे जितने सैकड़ों कछुए होते हैं वो सिर्फ एक ही दिशा की ओर उस नदी पानी में चलते रहते हैं। Because if they go in the opposite direction, they will die. अगर वो किसी और दिशा में जाएंगे तो वो मर जाएंगे। So they have been born with that gift of education, or educated. They are born educated to survive. और वो जो है अपने जन्म से ही अपनी उस शिक्षा को प्राप्त किए हैं कि इस तरीके से उनको सरवाइव करना है। But we human beings are not born educated. लेकिन हम जो मनुष्य हैं, वो हम जन्म से हमने वो शिक्षा को प्राप्त नहीं किया है। If we leave a small little child helpless, the child will die. अगर आप किसी एक बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें, तो वो एक असहाय हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। They need more and more time to get educated to get into the life. उनको और ज्यादा की समय की जरूरत है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। For that, they need the parents or the guidance from the elders. और उसके लिए उनको उनके परिवार से दिशा को उनको दिखाना है, परिवार उनको दिशा दिखाना, उनके द्वारा उनको शिक्षा को प्राप्त करना है। This is an integral as well as important responsibility of the grown-up society. और ये जो बढ़ने वाली जो समाज है आजकल, समाज जो है वो इस कार्य को उनको समझना है, उनके एक उत्तरदायित्व है इसको करना। So it's a big responsibility that God has instilled in the grown-up society to bring up the new generation. और ये एक जिम्मेदारी है एक आजकल के समाज के लिए इस सारी शिक्षा को लोगों को देना। So bringing up the society is a very important responsibility of human being. और इस समाज को बढ़ोतरी में लेकर आना, ये हमें से हर एक समाज के लोगों का जिम्मेदारी है। So if we fail in that process, we are failing the whole humanity. अगर हम उस कार्य में अगर असफल रहते हैं, तो हम पूरे मानवता के उस स्तर पर हम असफल हो जाते हैं। Here again, what I'm saying is that that the society has got a very important responsibility
to properly nourish the young generation and to build the young generation for a creative world. और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक समाज की एक जिम्मेदारी है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनको खड़ा करना, ये एक समाज की जो आज समाज है उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको शिक्षित करना, उनको बढ़ोतरी में उनकी मदद को करना। Last week, when I was talking to the Sunday schools, 2 Sunday schools in our church here, I was talking from Proverbs chapter 22, verse 6, which is very famous and very well known to everyone. और पिछले संडे जब मैं अपने संडे स्कूल में 2 संडे स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने नीति वचन के 22 की 6वीं आयत से मैंने उनसे बात की है, जो हम में से सबके लिए सुपरिचित वचन। It's 22:6. It says, "Train up a child in the way he should go." और इस प्रकार से कहता है कि अपने बच्चों को उस तरीके से निरीक्षण दे जिस तरीके से आप चाहते हैं कि वो जाएं। And even when he is old, he will not depart from it. Praise the Lord. और यहाँ तक कि वो बूढ़े भी हो जाएं तो वो इस पर से अलग नहीं होंगे या हटेंगे नहीं। So one important thing that we have to one thing we have to be happy about is that if we teach something to this human offspring, they will not forget it up until they are old. अगर ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी बात को, किसी शिक्षा को हम इस समय पर उनके अंदर रखते हैं, उनके अंदर डालते हैं, उनको सिखाते हैं, तो वो उनके बुढ़ापे तक उनके साथ रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। So it is important, it is very important that what you teach the children. और ये बहुत जरूरी है इस समझना कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं। It's very important that we, the elders or the parents or the elder society, have to really be prudent in selecting what is to be taught to the children and how the society have to be formed. और ये बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से क्या बात है जो हमें बच्चों को सिखानी है, युवक को सिखानी है, और क्या उसके द्वारा उनकी जिम्मेदारी है समाज के लिए। So we need to understand the importance of being teachers to the youngsters. और सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है एक जो युवक पीढ़ी की शिक्षक के रूप में। Second thing is, we need to understand that it is a dangerous thing if we don't do this responsibility properly. और दूसरी चीज, अगर हम इस उत्तरदायित्व को, इस जिम्मेदारी को अच्छे रूप में नहीं करेंगे तो इसकी क्या गंभीरता है। Third thing is that we need to be smart enough or prudent, or we need to be sensible to select what is to be taught to the children. और तीसरी चीज, हमें बहुत दृढ़ता के साथ, बड़े अच्छे रूप में, बड़ी समझदारी के साथ हमें जानना जरूरी है कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है। Fourth thing is that we make sure that they go, make sure that they understand it and they practice it. और चौथी बात, हमें ये जानना जरूरी है कि वो लोग इसको समझ रहे हैं और इसके कार्य को कर रहे हैं। All these things are included in the first half of that sentence, that verse. Train up a child in the way he should go. और ये सारी चीज उस आयत के पहले भाग में हम पाते हैं कि लड़के को उसी मार्ग को शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। So tonight I want, now this is said by the greatest person, the most wise person in the universe, King Solomon. और ये जो बात है, एक महान व्यक्ति
एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो इस पूरे संसार में है उसके द्वारा कहा गया, जो कि है राजा सुलेमान। Now, along with that, Jesus Christ said something that you seek first the kingdom of God and his righteousness. और इसी के साथ यीशु मसीह भी इसको कहते हैं कि पहले तुम राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। I want to combine these two things and want to conclude my message. और मैं इन दोनों बातों को, इन दोनों आयतों को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ और मैं अपने शब्दों को खत्म करना, विराम देने को चाहता हूँ। When King Solomon asked God for wisdom, you know why he asked for the wisdom? जब राजा सुलेमान जो है परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है, तो आप क्या जानते हैं कि उसने बुद्धि को ही क्यों मांगा परमेश्वर से? Do you remember? I want you to think. Why did Solomon ask for wisdom as the gift from God? अब मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप सोचें कि परमेश्वर से सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि को ही क्यों मांगा? Can anyone of our pastors tell me that? क्या कोई भी हमें हमारे पास्टर्स में इस बात को मुझे बता सकता है? Solomon, yeah, please. क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है सर, सबसे अच्छा है। बुद्धि है तो सब कुछ हो सकता है। Good. Okay. If you read that portion, Solomon said that I want this wisdom to rule or to guide or to lead your people. अगर आप उस भाग को पढ़े, उस आयत के भाग को पढ़ेंगे, तो वो कहता है कि मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं आपके लोगों के ऊपर राज्य को कर सकूं। So all our wisdom and all our education and all our training should be focused to one thing, to lead the people good way to God. और हमारी सारी बुद्धि, हमारी सारी शिक्षा, हमारी हर एक कार्य जो हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक और दिशा करनी चाहिए, एक और जानी चाहिए, जो कि परमेश्वर में एक अच्छे रास्ते के द्वारा परमेश्वर की ओर जाना। So our education should, of course, it has a worldly meaning and it has a worldly approach and a perspective, but at the same time, it should ultimately lead us to the eternal life that God has promised us. हाँ, उसका कोई अलग दूसरा मतलब है, उसकी अनंतता का एक मतलब है, लेकिन ये सारी बातें हमें उसकी ओर आकर्षित करनी चाहिए, उसकी ओर लेकर जाना चाहिए। Because without which our life is not going to be complete. क्योंकि उसके द्वारा हमारा जो जीवन है वो पूर्ण नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा। So seeking the kingdom of God, of course, the kingdom of God is owned by God. So seeking to find God and seeking his righteousness is one of the most important subject in our studies. हम जो पाठ को पढ़ते हैं, हम जो शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उसमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करना है। So all these subjects that we learn, all this great wisdom that we learn from this world should lead us to that ultimate truth, Jesus Christ. हर एक विषय जो हम पढ़े, हर एक शिक्षा को जो हम प्राप्त करें, वो सारी शिक्षा, सारी पाठ हमें यीशु मसीह की और उस परमेश्वर की ओर खींचने पाए, उसकी ओर आकर्षित करने पाए। So when we train our society, our youngsters, our children, we need to remember one thing, that we need to teach them how to seek God and how to seek his righteousness. और जब हम अपने बच्चों को, अपने युवकों को हम तैयार कर रहे हैं, उनको परीक्षण कर रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है किस प्रकार से हमें परमेश्वर को खोजना है, किस प्रकार से उसकी ओर जाना है। In the world, there are lot of mahat vyaktiyon. There are a lot of famous people who went that way and became very successful in their life. और इस संसार में हम देखते हैं कि उस स्तर पर जाकर कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्तियों को हम देखते हैं, जो इस तरीके से वो लोग गए और वो एक बहुत बड़े कार्य को उन्होंने
किया। I want to conclude this message. I know the time is going fast. I want to conclude this message with the appeal to earn the wisdom and, of course, to understand the methodologies or to have a zeal in seeking God and His righteousness. मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम को देना चाहूंगा, और ये परमेश्वर मदद करे कि उसको हम सीख उसके राज्य को हम खोज करने पाए और उसके राज्य के और बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने पाए। So for the EduPlus program as well as in our life, may God bless each and every one of us to reach our goal through seeking our God, through seeking the eternity and the righteousness. May God bless you. Thank you and God bless. और EduPlus के कार्यक्रम के लिए और हम में से हर एक जो आज मौजूद है, परमेश्वर हम सभी को आशीष करने पाए, उसके राज्य को खोज करने के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Praise the Lord. John sir, you have doctor online? Doctor है? अभी हमारा चंद्रदेव चौधरी जी ने प्रार्थना करेगा और हमारा प्रिय जैकब जी ने आशीर्वाद भी बोलेगा। प्लीज चंद्रदेव जी। धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्ग शक्तिवान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं इस रात के घड़ी में। प्रभु जी, हम सभी लोगों को प्रभु जी, आपका बेटा और सभी दास लोगों को प्रभु जो इस संगति में लेके आया और मिलाया प्रभु, और जो कुछ भी प्रभु जी हम लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए और शारीरिक उन्नति के लिए जो बात किया गया प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे जूम के द्वारा जो प्रभु प्लेटफॉर्म तैयार किया गया बच्चे लोगों को एजुकेशन शिक्षा के लिए प्रभु जी, एक संगति के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हुआ प्रभु जी, आप सहायता किया, मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो भी प्रभु जी आगे का कार्यक्रम होने पाए प्रभु जी, वो सब आपके इच्छा के अनुसार सब आपके आत्मा के द्वारा होने पाए, और प्रभु कुछ दिनों के लिए नहीं प्रभु जी, हमेशा बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रभु ये प्रोग्राम होने पाए, और सभी लोग प्रभु एक मन होके, एकजुट होके, एकता बना के प्रभु जी इस जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जूम के द्वारा प्रभु जी, जो शिक्षा के लिए प्रभु जी, वो आगे तक ले चल सके प्रभु जी, और तेरा इच्छा पूरा होने पाए प्रभु। और जितने लोग इसमें जुड़े हैं सब लोगों को प्रभु आशीष करना इस रात के घड़ी में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आमीन हमारा प्रभु परमेश्वर का प्यार और हमारा पुत्र यीशु का कृपा और पवित्र आत्मा का संगति हमारे सबके साथ, खासतौर पर EduPlus प्रोग्राम के साथ, हर एक कार्यों के साथ हमेशा हमेशा हो जाए। आमीन आमीन। हालेलुया। अभी हमारा क्या है, ये जो EduPlus का EduPlus बच्चों के लिए ट्यूसडे होता है और थर्सडे होता है और सैटरडे होता है, उसी में कुछ चेंज होना तो आप लोग बता दीजिए। और दूसरी बात ऐसी है, हमारे अलेक्स सर का पहले का प्रोग्राम बुधवार में थे, वो बुधवार छोड़कर उन्होंने मंगलवार को करने के लिए आगे आ गया, इसलिए आप लोग कुछ उसी में कुछ परेशानी होने से आप लोग बता दीजिए। उसी के हिसाब से क्या है, हमारा बच्चों लोगों का मीटिंग EduPlus तैयारी करेंगे। ओके, अभी नहीं बोलने से भी होगा, लेकिन अलेक्स सर का मीटिंग हर मीटिंग होगा ट्यूसडे में होगा, माने मंगलवार में होगा। और बच्चों लोगों का मीटिंग भी ऐसी है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को होता है। इसी में आप लोगों को कुछ फर्क करना है तो कर दीजिए, लेकिन हमारा अलेक्स सर का मीटिंग में आप लोग पूरा मंगलवार का 7 बजे से आप लोग शामिल होना चाहिए प्लीज।
Okay. Okay. Okay, I think we'll have to work it out. Abhishek, മോനെ അഭിഷേക് പോയോ? അഭിഷേക് പോയെന്ന് ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും അത് ജോൺ സാറോട് കൂടി what we'll have to do is that we'll have to collect the focus points and the number of students जितना भी है उसका एक लिस्ट लेने का है और उन लोगों का जो फोकस पॉइंट्स होता है ना, फॉर एग्जाम्पल वीरेंद्र का घर में 5 बच्चा लोग होगा और 2-3 अडल्ट होगा और चंद्रदेव का घर में इतना होगा और जेमिनी का घर में इतना होगा। तो ऐसा एक आइडिया बनाने का है, आइडिया बना के उसका एज ग्रुप भी पता करने का है ना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज ग्रुप को सबको कवर करना पड़ेगा ना। सो व्हेन यू डू दैट you need to understand इसका demographics तो जानना होगा, what age people are participating. I think basic it is going to be basic because nobody is that proficient in English, so you'll have to start from the beginning. So you need to have an idea about what we are dealing with and then introduce the syllabus to them. Okay, what we are planning and the time frame also. Tell them that, and you give them a homework and things like that, and